हेलो एवरीबॉडी, केम छो। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी होस्ट भूमि और आज है हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर, एन इंट्यूटिव हीलर एंड अ गाइड फॉर दोज who have lost their ways. So please welcome Priyanka Jadwani to our podcast channel. Hello Priyanka, how are you? Hello, I'm good. How are you? I'm also great. First of all, happy Navratri. Happy Navratri to all of you. So firstly, I want to ask that every healer has a story. Yeah. तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? And what drew you to this profession? So it all started 8 years ago when I was going through a very heavy depression. After a very good marriage, the divorce happened and I was not able to take that. So I initially started for my own self. So I wanted a relief to cure myself, to come out of the depression without any medicines or anything. Okay. So I started with searching different modalities. You know, I Googled everything. I was going through several books, self-help books and everything. So during that search, I came through Access Consciousness. So basically what it does is it starts healing you from within. Okay. So that's how I cured myself from the depression I was going through. And my healing journey started like I first started for curing my own self only. And I went on to learning deeper and going deeper with that knowledge and everything. And later, one of the mentor told me, why don't you teach? Because maybe your journey can be an inspiration to other people. Maybe you can heal somebody who are going through such depressions, like we are not able to connect. So, you know, after that, I started teaching it and taking sessions for it. And slowly after that, I started learning more modalities like tarot reading and NLP and meditations and everything. That all came after, you know, I started getting connection into my own self. So That is so amazing कि आपकी लाइफ में एक फेज आया, बट उससे आप खुद को तो आपने हील किया, लेकिन अब आप दूसरों के लिए भी वो कर रही हैं. दैट इज़ सो अमेजिंग. एंड आई वॉन्ट टू आस्क, जैसे आपने मेंशन किया कि आप सिर्फ टैरो कार्ड या हीलिंग नहीं, लेकिन यू प्रैक्टिस डिफरेंट मोडालिटीज. सो यू ऑल्सो वर्क विथ एक्सेस बार्स, राइट? सो मुझे ये बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की कि एक्सेस बार एक्चुअली होता क्या है और ये दूसरी प्रैक्टिसेस से कैसे डिफर करता है. So Access Bar basically, see what is it is there is a 32 points on our head. Okay. So हम उसको gently touch करते हैं and everything starts to dissolve from our body. Okay. Where there is a not connection, जहाँ पर हमें connection feel नहीं होता. So you know Access Bar different ऐसे है कि it includes every modality, like be it inner child healing, be it manifestation, be it मेडिटेशन. सो इट्स लाइक जो हम मेडिटेशन 1 वीक तक करते हैं उसका रिजल्ट आपको एक सेशन में मिलने लग जाता है. ओके. सो यू नो इट्स एंड मेनी पीपल हैव अ प्रॉब्लम कि हम मेडिटेट कर नहीं सकते, वी कैन नॉट सिट इन अ क्वाइट प्लेस. सो दिस सेशन इज डन फॉर यू बेसिकली. एंड यू नो ये हमारे सारे स्टक एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है. इट्स लाइक डीक्लटरिंग. कंप्यूटर कैसे वायरस आ जाता है तो हम उसे पूरा डीक्लटर कर लेते हैं. सो दैट सेम वे ये जो थेरेपी होती है वो हमारी बॉडी में से सारी वो डीक्लटर्ड एनर्जी को निकालना शुरू कर देता है जो बेसिकली हमारे लिए वर्क नहीं करते. ओके. सो यू नो एवरीथिंग गेट्स स्टक इनसाइड आवर बॉडी एंड दैट्स हाउ द पेन, द डिस्कम्फर्ट, मे बी द फ्रस्ट्रेशन, द नॉट हैप्पी फीलिंग, द कंपैरिजन, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट. सो जो भी हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है. एंड ऑल्सो यू नो हमारे जो सेल्स का शेप होता है वो राउंड होता है, बट विद ऑल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन जो हम बचपन से स्टोर करते हुए आ रहे हैं एंड फ्रॉम द डे टू डे लाइफ हम सफ़र करते जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल हो जाता है. एंड दैट्स वेयर यू नो एवरी थिंग इन द बॉडी स्टार्ट्स हैपनिंग. जो छोटा मोटा पेन भी हो और द बिग पेन्स ऑल्सो. सो ये सब कुछ एक स्टक एनर्जी से ही हमारी बॉडी में स्टार्ट होने लगता है. यू नो इट कम्स आउटर. सो ये जो मोडालिटी है ये आपको अंदर से हील करती है, नॉट जस्ट द क्विक फिक्स. लाइक जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आप एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन में जा रहे हैं कि आपने मेडिसिन लिया, उसे आउटर लेवल पे ही उसे ठीक कर दिया. बट व्हेन यू गो टू द हीलिंग मोडालिटीज़, बी इट एक्सेस बार और एनी अदर, दे गो डीपर इनसाइड यू कि आपको अंदर से क्या प्रॉब्लम है, ये शुरू कहाँ से हुआ, आपकी जो एनर्जी है वो स्टक कहाँ पर है जिसकी वजह से यू नो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है. So with the healings and with Access Bar, we go deeper and heal those things.
ओके, दिस वन इज़ लाइक रियली न्यू फॉर मी, और ये इतनी अच्छी टेक्निक है जैसे आपने बताया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इससे ख़त्म हो सकती हैं. एंड आई डोंट नो कि लोगों को इसके बारे में प्रॉपरली पता भी है या नहीं, बट ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे. एंड ऑल्सो जैसे आपने मेंशन किया कि आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है एक इंसान के अंदर. सो जैसे हमारी जनरेशन में स्पेशली देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, एंजाइटी से गो थ्रू करते हैं. तो आप एक कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि ये सब प्रैक्टिसेस करके कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? सी प्रैक्टिस भी बताऊंगी, एंड देन आई ऑल्सो शेयर वन थिंग, सेल्फ डाउट जैसे हमने बोला. हाँ जी. So basically what happens when you doubt yourself. Yes. So आपका heart energy, हमारा एक energy centers होते हैं which is also called 7 chakras and everybody knows nowadays about the 7 chakras. So जब हम self doubt करते हैं, हम अपने ऊपर doubt कर रहे हैं या self love की जो हमारी कमी है, so हमारा heart chakra blockage होना शुरू होता है. It is connected to our root chakra. So वहाँ से आपको unsupported feeling भी आने शुरू हो जाती है. Now अब वो सारा कुछ जाकर स्टोर हो जाता है सोलर प्लेक्सस में. अब हमारे जब 3 चक्र ऑलरेडी ब्लॉक हो गए हैं, उससे हमारा थ्रोट चक्र, लाइक यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली, सो आपका 4th चक्र भी ब्लॉक हो गया. सो दैट्स हाउ ये जो सारा सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारी बॉडी में ऐसे स्टोर हो गई. अब नाउ व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, आप एक आउटर, जैसे हमने एक हेडेक ही बता दिया, व्हेन आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, मुझे एक सीवियर हेडेक शुरू हो जाएगा. मुझे दूसरी प्रॉब्लम्स उससे शुरू हो जाएगी. व्हेन आई गो टू द डॉक्टर, दे विल गिव मी मेडिसिन्स फॉर दैट पर्टिकुलर इशू, बट प्रॉब्लम तो मेरे सेल्फ डाउट और सेल्फ वर्थ इशू से अंदर से शुरू हुई थी. करेक्ट. सो वहाँ पर ब्लॉकेज की वजह से सारी चीज़ें ब्लॉक होना शुरू हो गई, एंड माई बॉडी गॉट वीकेंड, और आई सेड द एनर्जी गॉट स्टक. सो इनको रिलीज़ करने के लिए पहले तो हमको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर anything you are doing. So if for the self love thing, you can just start with, while you are sleeping or while you are awake, just close your eyes for 5 minutes, take 5 deep breaths. With every breath you are taking, just say I love myself. Love myself. Initially ये लगेगा कि ये क्या बकवास है, ये क्या है. Even you start fighting also कि I तो love myself, I do take care, but it generally happens with the outer look. हम अच्छा खा लेंगे, हम अच्छा ड्रेसअप कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग लाइक कंपैरिजन है, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग सम डिसीजंस है, और गोइंग आउट एनीवेयर, वी एक्चुअली कंपेयर आवरसेल्व्स, वी एक्चुअली डाउट आवरसेल्व्स, वी एक्चुअली सी दैट हम ये कर पाएंगे कि नहीं, हम इतने वर्थ इट हैं या नहीं. द कन्वर्सेशन, एवरीथिंग गोइंग इनसाइड आवर head is always about doubting our own self. So, when you start saying this, I love myself, you just see after few days, you'll actually feel good, confident, and motivated about your own work and life. So, the one practice I can say which anybody can do, it's very easy. It's very easy, but it's very life-changing at the same time. आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, इट हेल्प्स यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. मतलब वो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है. एंड सेल्फ लव इज़ सो इम्पॉर्टेंट. तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि आप इतनी सारी रीडिंग सेशंस और हीलिंग सेशंस करते हैं, तो वॉट इज़ दैट मोस्ट कॉमन इशू और चैलेंज जो लोग आपके पास आजकल लेकर आते हैं, जो आपको लगता है कि ये चीज़ आजकल बहुत हो रही है एंड कुछ सोल्यूशन देना चाहिए इस चीज़ का? सी मोस्टली पीपल कम विद बेसिक प्रॉब्लम. अगर मैं बोलूँ ना, तो सबका एंड होता है फियर पे. करेक्ट. सो दे डाउट फर्स्ट, या तो उनकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल दो सिचुएशन. उनके बिजनेस में कोई इशू चल रहा है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल. मोस्टली फियर होता है या डाउट होता है खुद के ऊपर, जिसको वो डील नहीं कर पाते इन दैट प्रेजेंट सिचुएशन. सो एंड ऑल्सो पीपल कम विद द पेन्स, डिस्कम्फर्ट्स बॉडी में हो रहे हैं, सब कुछ. सो व्हेन दे कम, वी एक्चुअली व्हाट आई टेल देम इज, हम जब अपनी प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो हम बहुत घुस जाते हैं उसके अंदर. when a friend comes to you and asks for a solution, you always have a solution for that. And when it comes to your own problem, you never have the solution. आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब उसका next step भी क्या लेना है. True. So when somebody comes, or even to your own thing, I'm telling, अगर आपको खुद को भी हो रहा है, तो see your life situation as a story, or come out of that for a few minutes कि अब इसके बाद का step क्या लेना है, अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए.
बिकॉज जब हम अपनी प्रॉब्लम में होते हैं तब वी आर लाइक सराउंडेड विद इट, वी आर नॉट एबल टू सी फ्रॉम सम लिटिल डिस्टेंस और सी आउटसाइड ऑफ इट, लाइक उसको बाहर से नहीं देख पाते हैं. So when you come out of that situation, when you just expand your energy and see your same situation, you'll definitely have the solution. Because I'll definitely say that nobody better than you know how to solve it. Because अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ है भी तो मैं आपको इंसाइट दूंगी अपने नॉलेज से, अपने अंडरस्टैंडिंग से और अपनी इमेजिनेशन, यू कैन से, लाइक व्हाट यू आर सफरिंग, बट यू नो व्हाट यू आर सफरिंग. यू नो भले प्रॉब्लम बहुत छोटी सी भी होती है बट वो आपके लिए बहुत बड़ी है. आपको उससे निकलने का रास्ता अच्छे से चाहिए और डेफिनेटली यू आर लाइक लुकिंग आउट फॉर सम रियल गुड हेल्प. सो दैट्स हाउ समटाइम्स आई ask questions to the people or to the patients over that time to come out of the situation, like thinking खुद से ही उनको ज़्यादा बेटर निकालता है. तो हम उनको वही फैसिलिटेट करते हैं by asking many questions related to their issues and everything, so that they are able to find a solution. ओके ग्रेट. सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपने इतने सारे सेशंस लिए होंगे, इतने सारे मल्टीपल लोगों से आप मिली होंगी, तो मैं क्या आप एक शेयर कर सकते हैं हमारे साथ एक स्टोरी जिसमें आपको लगा हो कि मैंने इस इंसान का सेशन लिया है, इसने हीलिंग सेशंस अटेंड किए हैं, तो उसकी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट आपने नोटिस किया हो कि ये सब प्रैक्टिसेस वो अगर फॉलो कर रहा है तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में मतलब शिफ्ट हुआ हो. तो आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है? ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज है. वन ऑफ देम इज देयर वाज अ हाउसवाइफ. वो शी वाज वेरी गुड, शी वाज वेरी हैप्पी इन हर लाइफ, शी हैज़ एवरीथिंग, बट इनसाइड वो जो एक खालीपन, एम्प्टीनेस रहता है, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम विद इन. सो शी जस्ट जस्ट जॉइन माई सेशंस. ऐसे तो उसने फर्स्टली ऐसे ही किया कि लेट्स सी व्हाट दिस मोडालिटी इज, आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी उन्होंने ज्वाइन किया था. एंड लेटर शी वॉज फ्रॉम अ गुड बिजनेस फैमिली ऑल्सो. Later, after taking sessions, after using the tools and after using this modality, she is now running a very successful business. Like from underconfident to a great confident girl, she turned out that way. Okay. So one of the success stories, that one is like one lady came from the pregnancy issue. Like she was trying very hard to get pregnant. She went through many IVF sessions also. And that too, then also she was not getting successful. So I just asked her to just take a few sessions from me and see what is changing in her life and her body. Like after a few sessions, she recognized what she was going through. And after the session, she went for the IVF session again and it was successfully done. Okay. So after a long struggle, like it took 16 years for her to get pregnant. But it was done after a few sessions she took from me. And in the same way, many ladies started their own business, after the tarot reading sessions, or you can say the access bar sessions. For whatever reason they come, they have been successful in that. ओके, दैट इज़ सो अमेजिंग. इससे हमें ये समझ आता है कि अगर हम अपने अंदर की चीज़ों को पहले समझें कि क्या हमारे अंदर चल रहा है और अगर हम उसको हील करने की कोशिश करें तो कितनी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है. See, basically some people also come with the confused energy also. उन्हें बहुत सारे confusion रहते हैं, बहुत सारे doubts रहते हैं. But the same thing, एक cognitive dissonance हमारी बॉडी में हो जाता है. Like I want to do something, but society क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, and then you just stop yourself and then stuck, and again that वो unhappiness हमारे अंदर revolve करते रहती है. But with the same issues, with the same thoughts also, आपकी body में energy block होना शुरू कर देती है. Sometimes the lower back pain, the shoulder stiffness also come from the fight which is constantly going in our head. कुछ काम करना है बट हम कर नहीं पा रहे हैं with certain reasons. We just give justifications to ourselves only. But एक inside एक story चलती है ना, मुझे ये काम करना है बट फिर ये हो नहीं पाएगा, ये करने नहीं देंगे, लोग क्या बोलेंगे and all that stuff. घर वाले मानेंगे नहीं. So उन सब की वजह से भी कितने लोगों को वो clarity मिली है when they have came, then they have talked and took sessions or asked from the tarot sessions. तो दैट इज़ सो ग्रेट. और टैरो सेशंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को टैरो रीडिंग के बारे में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम में भी देखते हैं आजकल टैरो रीडिंग के इतने सारे रील्स, जैसे ही स्क्रॉल करते हैं टैरो रीडिंग. तो ऐसे कुछ है मिथ्स या मिसकंसेप्शंस जिनको आप ब्रेक करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू?
सो टैरो रीडिंग के साथ लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है. फर्स्ट तो उनको ये जेन्युइन है कि नहीं वो वाली फीलिंग आती है. यू नो द मोस्ट asked question from me is like, once people come to me, they ask, is it really genuine? So definitely it is genuine, because tarot works on your present energy. Tarot works on your it's like a mirror to your soul. So जब आप tarot reading के लिए आ रहे हैं, it's not, people को एक डर ये भी होता है कि अरे आप ऐसा कुछ बता दोगे तो हमको डर बैठ जाएगा, हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा, then we'll not be able to function properly. और एक डर बैठ जाता है तो फिर लाइक हाउ द कुंडली थिंग्स वर्क, कि आपके साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो लोग एक दिमाग में डर बिठा देते हैं. बट विद टैरो रीडिंग इट्स नॉट देयर. ये फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, इट्स अ गाइडेंस बेसिकली. ये आपको गाइड करता है, ये आपको क्या चेंजेस आप ला सकते हैं. लाइक इफ यू वांट टू डू समथिंग एंड इफ इट्स नॉट पर्टिकुलरली आपकी एनर्जी के साथ वो अभी मैच नहीं कर रहा है, तो आई कैन गाइड यू लाइक व्हाट एल्स यू कैन डू सो दैट वो आपके फेवर में वर्क करने लग जाए. एंड समटाइम्स आपके अंदर क्या चल रहा होता है, तो वो सारा कुछ आपकी टैरो रीडिंग से बाहर आ जाता है. व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड टेकिंग बिग डिसीजंस, उसमें आपको हेल्प, उसमें आपको गाइडेंस मिल जाती है. व्हेन यू वांट सम क्लैरिटी, और एक होता है ना कि अभी हमारे घर की एनर्जी भी वर्क नहीं कर रही है और मेरी एनर्जी भी वर्क नहीं कर रही है. सो टैरो भी आपको आपके अंदर सेल्फ वर्क, मतलब सेल्फ इनर वर्क के लिए भी बहुत हेल्प करता है. सो हाउ कैन यू ट्रस्ट योर ओन एनर्जी, योर ओन इंट्यूशन, योर ओन इनर वॉइस बेसिकली. सो जैसे आप इतने सारे आप रोज़ टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस करती होंगी, हीलिंग सेशंस करती होंगी, तो यू मीट मल्टीपल पीपल और आपके बहुत सारी एनर्जीज आपसे क्रॉस होती होंगी. तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप अपनी पर्सनल एनर्जी और ऑरा को कैसे क्लेंस्ड और लाइक पॉजिटिव उसको मेंटेन कैसे करती हैं? See, basically I start my day with the meditations and all. तो मैं अपनी एनर्जी को तो वैसे ही डेली प्रैक्टिस करके इन्हेंस करते रहती हूँ. सेकेंडली विद द हीलिंग सेशंस, जब कोई इंसान आ रहा है तो हम उनकी चीज़ों को एज अ स्टोरी सुनते हैं. वी आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. जैसे मैंने अभी बताया, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको सॉल्यूशन फिर मिल नहीं पाता है. सो व्हेन पीपल आर कमिंग, आई जस्ट listen to them, I just be there with them, but I am like not getting so much connected to them at that moment. I know when some people cry and all, अच्छा नहीं लगता है, but at that moment you just have to understand that this is a story going on, this is a film going on, which I have to like outside रह के समझना है and not deeply involve होकर उसमें घुस के अपनी energy को भी spoil कर देना है. So first though, I just listen to them as a story. Secondly, I keep myself, like I keep taking my sessions and I keep taking my routine like properly, so that I'm not so much affected from other people. So basically meditation helps me a lot by keeping my energy clean and not affected, and also the access bar sessions. So as you mentioned about meditation, so आजकल इतनी सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, सब अपने जॉब्स, बिजनेसेस, जो भी वो काम करते हैं उसमें इतने बिजी हो गए हैं कि वो अपने लिए ही टाइम नहीं निकालते हैं. तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आप कुछ ऐसे टेक्निक सजेस्ट कर सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए कि वो छोटे टाइम पीरियड में ही वो कर पाएँ, एट द सेम टाइम उनकी लाइफ में बहुत बिगर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, क्योंकि मेडिटेशन और ये सब प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली. तो ऐसी कोई टेक्निक आप सजेस्ट करना चाहती है हमारी ऑडियंस को? See, for the technique, I'll say, I know busy schedule में सब ये सब हम अगर मैंने बोल दिया 1 घंटा बैठो और ये सब करो, तो there is not possible for them to do. Correct. But you can just make a routine of doing that before sleeping. जब आप सो रहे होते हैं, when you just lie down, you can do that after. You can do after that also. जब आप सो रहे हैं, just close your eyes, take few deep breaths, and cleanse your energy of that day. Like, I'm cleaning everything that happened today. I am releasing everything that happened today. And as I said in the starting कि I love myself वाला जो है, आप eyes बंद कीजिए, I love myself, और any affirmations. See, affirmations are also very important and very useful. Affirmations are like आपके self talk है basically. So जो आप आपसे खुद से बात कर रहे हैं, ये affirmation भी उसी का ही काम करते हैं. I am happy, I am magical, or whatever you want to say. So while sleeping, I'm just saying while sleeping, close your eyes, do some affirmations, say I love myself, and let that deep breathe and the affirmations let you to go sleep. So when you sleep with a good energy, you wake up with a good energy. Correct. Also when you wake up, I'll just ask you to again start with affirmation and take few seconds just to
contain your energy, refrain your energy, and start with I love myself and all of life comes to me with ease, joy and glory. These few affirmations are very life changing and very helpful in your daily life. If you just keep on repeating these two things while sleeping and after waking up, you'll see a major shift happening to you. Okay. So, just while sleeping and before after waking up, take few minutes, like 5 to 10 minutes if you give yourself. That's how you are setting your day also, like I am important. Otherwise हम कैसे उठते हैं, अरे लेट हो गया, rush. When you get up with these energies, आपका full day वैसा ही जाता है, rush, ये काम करना है, वो काम करना है, next is this, next is that. So आप अपने लिए और अपनी important चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं. So start करने के लिए I'll just say 5 minutes. 5 minutes is not more important than anything or more important than you. So you can spend those 5 minutes with yourself and आप अपना tone day of start of the day and set कर सकते हैं. Very true. And I also want to ask कि एक topic आजकल बहुत trending है, manifestation. Yes. So it is all over the internet. इतने सारे लोग इतनी multiple techniques बताते हैं कि आप ये करिए तो manifestation आपका work करेगा, ये करिए. So I just want to ask you कि आप एक technique हमारी audience को बता सकते हैं कि जो accurately आपके लिए भी work किया हो और जो आपने देखा हो कि हाँ ये real life में work करता है. ठीक है. So start with it, trusting your own self. Okay. Have a great trust on your own self. आपका self love और trust रहेगा तो manifestation, basically manifestation work कैसे करता है आपकी energy पर. So आपका जो energy level रहेगा ना, अगर आप lowest energy में कुछ मांग रहे हैं, how manifestation works is ask and it's given. Yes. तो जब आप मांगते हैं कुछ तो वो आपको मिलता है. But हम अगर हमारे lowest denominator of energy में मांग रहे हैं, like I'm very angry, I'm very confused, I'm very frustrated, और इस energy में, और I'm very fearful of my future, and I'm asking something, आपको वो नहीं मिलेगा. Because that's not how you're vibrating in a good energy. Like आप vibrate भी नहीं कर रहे और आपकी energy भी वैसी नहीं है. Shift your energy to a happy, to a joyful mood, so that आपका जो manifestation है, जो आपका ask है, वो आपको तुरंत मिल जाता है. And how can you do that is, basically I ask you, ये सब एनर्जी से हम सब गुजरते हैं. एंगर होना, फ्रस्ट्रेशन होना, फियर होना, डाउट होना, दैट्स वेरी कॉमन. इफ आई से यू इस सब में मत रहो, इट्स लाइक आई एम टेलिंग, इट्स जस्ट अनदर लेक्चर आई एम गिविंग यू बेसिकली. सो आप जब भी ये सब चीज़ों में आते हैं, गुस्सा आया, रोना आ रहा है, डर आ रहा है, दैट्स कॉमन थिंग, बट इमीडिएटली चेंज इट. Don't go into the flow of it. What happens is when I'm angry or when I'm crying or when I'm in certain energy, हम उसके ना flow में चले जाते हैं. We create thoughts in our head और हमारा जो self talk है वो हमको उसी energy में लेके जाता रहता है, giving it more reasons या more ऐसे पुरानी बातें याद आती रहेंगी. Like एक issue से हम बहुत deep अंदर उस thought process में चले जाते हैं. So just change when आपको गुस्सा आ रहा है, आपको frustration आ रहा है. Just change your energy. Either move from that place. अगर हम यहाँ बैठे हैं इस रूम में और आपको गुस्सा आ रहा है, so what you'll do is आप उस तरफ बैठ के उसके फ्लो में चले जाते हैं. उसी के बारे में और सोच के अपने आप को और गुस्सा दिलाएंगे या बैड फील करते रहेंगे. Change your place immediately. Okay. Listen to a good song. Walk outside. Like आप walk करने भी चले जाएं तो you'll feel good. Have something of your, like आपको कुछ चीज़ बहुत पसंद है वो आप खा लें. So these are few things जो आपका mood change कर सकती हैं. So do something कि आपका वो जो flow, मतलब जो energy है, like जो moment है वो change हो जाए. And then again you are in a good state of mind and good mental state basically. So उस moment में आप कुछ भी मांगेंगे वो आपको मिलने लग जाता है. What I personally believe is कि जब आपको कुछ manifest करना हो तो आप बस यूनिवर्स में वो एनर्जी भेज दो कि ये हमको like I'm manifesting this and just work towards it. फिर आप भूल जाओ, आप उसके लिए वर्क करो और ऑटोमेटिकली यूनिवर्स वो कर देता है आपके लिए. मुझे बिलीव है. Yes, and that's what I'm saying. वो कब होता है जब आप हैप्पी और खुश हैं. Very true. That's what happened. When आप बहुत fearful energy से कुछ मांग रहे हैं, भगवान प्लीज दे देना, तो that's not how it work. वो कब होता भी कब है जब आपने बोला कि हम बोल के भूल जाते हैं, जब आप हैप्पी स्टेट में होते हो. I would like to have that. So that's a good happy energy. With the happy energy you're saying, and definitely manifestation भी उसका बहुत फास्ट हो जाता है. करेक्ट. एंड जैसे हमने अभी बहुत सारी बातें की हीलिंग की भी, तो आई वॉन्ट टू आस्क टू यू कि हीलिंग का फ्यूचर क्या है,
क्या ये मेन स्ट्रीम बनने वाला है या फिर ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बन के ही रह जाएगा? सी विथ कमिंग, अभी आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में many people are aware of the mental health so much. So and also ये सोशल मीडिया हमें डिप्रेस भी कर रहा है और एजुकेट भी कर रहा है. करेक्ट. सो with this coming social media thing, mental health is becoming the mainstream. And also the coming generation, like Gen Z, we all know, they are very much aware of their mental health. So when your mental health is good, ये आपका physical health और बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं. So people are aware and they are working towards their mental health. And even other generations also, they are also, taking this alternative therapy, like healing as a mainstream also. जब वो आजकल कुछ चीज़ों से, कोई बड़ी बीमारी से face कर रहे हैं, तो along with the medicines, they are also seeking out for the healing things as well. So ये definitely change हो रहा है. And with the coming future, like I definitely think mental health mainstream बन जाएगा. I absolutely agree. Lastly, I want to ask to you an advice जो आप young girls को देना चाहेंगी जो अभी आपको देख रही हैं. To all the young girls, I'll definitely say never quit. Never ever quit. Whatever your external situation is, whatever you're going through, or while it's studying or taking a big step towards your career, marriage, or anything, never quit. There is always a help available outside, be it a friend, be it many healers, be it doctors, anybody are there like to help you, to guide you. Just trust your own self. Don't go for the outer validation, and keep moving. Never quit, and just trust yourself is the main thing I would like to tell to all the girls. I agree. So it was so lovely having you with us today in our podcast. This was such a soulful conversation. मैंने आपसे इतना कुछ सीखा. You are truly an inspiration. और मुझे लगता है कि मैंने आज आपसे इतना कुछ सीखा तो हमारी ऑडियंस भी 100% उनको बहुत सारा नॉलेज और विजडम मिला होगा. तो थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस इतना सारा अच्छा नॉलेज, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे. इट वाज लवली हैविंग यू. Thank you. Same here. It was a wonderful experience. Thank you. So that's all for today in our podcast. See you all in the next podcast.